The strategies discussed here are subject to compatibility risk. Please analyze all the strategy related points carefully and then decide which points or tips can augment your own strategies. What worked for me may not work for you, and I'm no teacher. Hello everyone, this is CA Bhramar Jain, and without any further ado, let's get started. So in this video, I'll be talking about my strategies and approach for paper 5, that is strategic cost management and performance evaluation. So at the very outset, I would like to make it clear that SCMPE is obviously not the toughest subject of CA final. I believe all this hype, or hawa as we say, has been created around this subject after November 2020 exams. So what happened in that exams were 100% of the question paper, that is to say 120 marks of the questions, came from study material or RTP MTP itself, as in ditto copy paste questions. So I somewhere believe that the checking was intentionally done hard of that subject, and that's the reason why people got miserable marks. It's not about the subject as such, matlab subject in itself is not too hard to tackle. So starting from the classes, I took classes of SCMP from Rakesh Agrawal sir. उनकी मैंने फर्स्ट रिकॉर्डेड बैच ली थी, दैट इज़ आफ्टर कॉस्टिंग का सिलेबस चेंज हुआ था, तो फर्स्ट रिकॉर्डेड बैच आई टुक. एंड एज फार एज द मटेरियल्स आर कंसर्न, सो आई रिफर्ड राकेश अग्रवाल सर्स बुक. तो दैट बुक बेसिकली कंटेन्स थियरी डिट्टो कॉपी ऑफ SM. तो लाइक थियरी इज ऑफ कॉपी पेस्ट फ्रॉम SM, एंड क्वेश्चंस में so all the questions of SMs are covered, and some relevant questions of old PM are also covered of specific chapters like decision making, transfer pricing, marginal costing, standard costing. तो ये सब chapters के old course के थोड़े थोड़े questions covered थे. And obviously दो amendment batch भी सर ने निकाला था, तो that amendment batch contained material of RTPs, MTPs and papers like subsequent to classes which I took. So that was about the material. So I would obviously recommend कि study material is more than sufficient. Study material की theory and questions कीजिए. Old course की PM में चाहे तो you can dive, but it is not much important. And also institute have come up with a digest of case studies, I believe. So obviously you have to go through that. So as far as my strategy is concerned, तो costing was the first subject which I took in my preparation leave or the study leave as you may call it. सो वॉट हैपेंड वॉज कि हमारी क्लासेस जो थी एज आई ऑलरेडी सेड कि दैट वाज द फर्स्ट बैच ऑफ न्यू कोर्स. तो सर का कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में ही ज़्यादा फोकस था. थियरी एज सच सर ने कभी क्लास में रीड कराई नहीं थी. ऑब्वियसली उन्होंने कंसेप्ट समझाए थे लाइक BPR वगैरह वगैरह जो भी हो गया, तो ही यूज टू गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड समझाते थे हमें, बट वी डिड नेवर गो थ्रू थियरी लाइन बाय लाइन. सो दिस इन फैक्ट टर्न्ड फॉर मी टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो बेसिकली मुझे थियरी खुद से पूरा टैकल करना था. तो आई स्टार्टेड रीडिंग थियरी, एंड मुझे कहीं ना कहीं थियरी काफ़ी जनरल लग रही थी, कुछ याद नहीं हो रहा था, समझ में सब आ रहा था, कुछ याद नहीं हो रहा था. तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू मेक समरीज और नोट्स, और इसी से मेरे समरी और नोट्स का सिलसिला चालू हुआ. दिस वॉज द सब्जेक्ट दैट इंस्पायर्ड मी टू मेक नोट्स. सो मैं क्या करता था, एंड saying it to be summaries is like kind of injustice. I literally used to write the whole sentences or paras, not just keywords. तो मैं जो theory बनाता था ना, तो that was such theory कि मैं फिर book देखता ही नहीं था. तो that was whole sentences. Obviously irrelevant, एकदम irrelevant points और topics में cut कर देता था, लेकिन पूरा book type का लिखता था. So I made summaries or notes of every theory chapter, bearing a few for like example target costing या ABC analysis हो गई. तो आई बिलीव कि ये दोनों चैप्टर्स की थियरी भी और ऐसे टाइप के चैप्टर्स की थियरी यू कैन ऑल्सो मतलब कम फोकस रख सकते हैं इसमें, बिकॉज दैट्स ऑब्वियस कि वैसे टाइप्स के चैप्टर्स से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर मोर ऑफ एक्सपेक्टेड. सो यू कैन फोकस लेस ऑन थियरी पार्ट ऑफ दोज चैप्टर्स, बट कीप इन माइंड दैट मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थियरी कैन कम. मतलब थियरी चैप्टर्स के तो आप पूरी थियरी पढ़िए. सो वॉट हैपेंड इन अटेम्प्ट वॉज वन क्वेश्चन केम ऑफ accounting style, 3 accounting styles for using costing information. So that theory was not covered, I believe in any teacher's reference material. But since I made a comprehensive summary of all the theory chapters, I was able to answer that question perfectly. So mind you, most unexpected theory can come. So make sure to cover 100% of the theory in theory chapters. एंड समवेयर आई बिलीव कि कॉस्टिंग की थियरी इज लाइक थोड़ा सी जनरल है. तो अगर आप उसको सिर्फ रीड थ्रू करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको याद होगी. लाइक लॉ में अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी में चली जाती है. लेकिन सिंस कॉस्टिंग में थोड़ी जनरल थ्योरी, तो आई मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ नेमोनिक्स. मतलब बी इट लाइक टेकिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स एज वी डू, या फिर टेकिंग द होल कीवर्ड एंड मेकिंग स्टोरी ऑफ सम सॉर्ट,
या फिर आई ऑल्सो यूज टू लर्न आंसर्स बाय इमेजिनेशन. टेक फॉर एग्जाम्पल JIT में जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है, सो आई यूज टू इमेजिन ओके हम सप्लायर के पास जा रहे हैं, वी आर सिलेक्टिंग द बेस्ट सप्लायर. फिर एक डिलीवरी कार आ रही है एकदम फुल स्पीड में, डायरेक्ट मशीन के पास पहुंच जा रही है, तो फुल स्पीड में जा रही है तो हम इंस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले से इंस्पेक्ट करके रखो. और फिर डायरेक्ट मशीन तक पहुंच जा रही है तो फिर अकाउंटिंग भी नहीं कर पा रहे, तुरंत मटेरियल यूज हो रहा है तो वी नीड बैक एंड सिस्टम. कुछ भी, तो मतलब दिस सॉर्ट ऑफ स्टोरीज से भी आप आंसर लर्न कर सकते हैं, लेकिन मेक यूज़ ऑफ निमोनिक्स, क्योंकि जनरल थियरी कहीं ना कहीं फिर वो वैनिश हो जाएगी सेकंड थर्ड रिविजन में आप पहुँचेंगे तो. So that was about theory, and coming to one of the most feared part of costing, that is case studies. So I believe case studies are too overhyped. मतलब इट्स ऑब्वियस कि जो आप इंस्टीट्यूट की केस स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें 7 to 8 पेजेस के आंसर्स होते हैं. इट्स ऑब्वियस यू कांट रोट लर्न देम, मतलब, और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रोट लर्न देम. सो वॉट माई स्ट्रैटेजी इन केस स्टडी वॉज कि मेरी थियरी ऑलरेडी सब चैप्टर्स की बहुत अच्छे से की हुई थी. तो मैं केस स्टडी में मैं ऐसा बनाया था कि मैं अपना थियरी लिखूंगा बुक की, और उसके बाद फिर मैं अपने मन से केस स्टडीज़ को रिलेट करूंगा उस थियरी से. एंड दैट इज़ वॉट आई बिलीव इज़ टू बी डन. यू कैन नॉट रेक्टिफाई ऑल द केस स्टडीज़ ऑफ इंस्टीट्यूट. सो बट जब नवंबर 20 में केस स्टडी डिट्टो कॉपी पेस्ट छपी थी, तो समवेयर मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ कि दैट इंस्टीट्यूट माइट एक्सपेक्ट लाइक इट्स ओन आंसर्स. So what I did was कि आंसर्स, केस स्टडी के जो आंसर्स होते हैं, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रोट लर्न देम होल. तो मैं हर पैरा में थोड़े बहुत पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेता था, हाईलाइट कर लेता था, एंड उसको थोड़ा बहुत रिमेंबर करने की कोशिश करता था. आई डिडंट यूज टू फोकस टू मच ऑन डैट. माई ऑब्वियस फोकस ऑन द थियरी पार्ट, मतलब जो मेन थियरी जो लिखनी है एज पर चैप्टर. केस स्टडी रिलेशन का थोड़ा बहुत मैं लर्न करने की कोशिश करता था. सो दैट्स आई बिलीव वॉट यू कैन डू. एंड ऑल्सो जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब की पॉइंट्स या की लाइंस हाईलाइट कर लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आप जब केस स्टडी गो थ्रू करें तो यू डोंट इवन हैव टू रीड द फुल क्वेश्चन एंड यू डोंट इवन हैव टू रीड द आंसर्स. मतलब दोनों के सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट्स अपन को पढ़ने हैं, वरना इट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. एंड ऑल्सो फॉर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, या फिर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, KPIs, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो आई वुड एडवाइस कि उसमें कुछ यूनिवर्सल टाइप के पॉइंट्स ढूंढ लीजिए आप, ताकि यू कैन थ्रो दैट पॉइंट्स इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन. एंड ऑब्वियसली देन केस के हिसाब से आप स्पेसिफिक पॉइंट्स और लिखेंगे भी, बट यूनिवर्सल पॉइंट्स भी आप अपने मतलब हैंड में कुछ रख सकते हैं. एंड आई थिंक एवरीबडी नोज दैट हाउ टू अप्रोच अ केस स्टडी. लाइक सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए केस स्टडी से पहले. क्वेश्चंस पढ़ने के बाद देन यू हैव टू गो ऑन टू प्रोसीड टू रीड द केस स्टडी, एंड उसके हिसाब से आंसर्स लिंक करने हैं आपको. एंड टू जस्टिफाई द पॉइंट दैट इवन इफ यू राइट योर ओन आंसर्स इन केस स्टडी यू गेट गुड मार्क्स. What happened in my exam was I got 84 in costing, that is the highest marks of all the subject. So but exam में क्या हुआ था, I made a very bad choice. मतलब मैंने ऑप्शन अच्छा नहीं चूज़ किया था. एक बेसिक सा क्वेश्चन था OE वाला, उसको मैंने छोड़ के एक ऐसा क्वेश्चन चूज़ किया दैट वाज कम्प्लीटली न्यू. क्वेश्चन सेकंड मैंने चूज़ किया था एंड इट इन्वॉल्व सम मैथ्स एंड सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, और लिटरली मैंने वो क्वेश्चन को ऑलमोस्ट आधा में छोड़ दिया था. तो दैट 20 मार्क्स में से मुझे आई एक्सपेक्ट कि बहुत ही कम मार्क मिले होंगे, but then also I got 84. That goes on to indicate that question 1 जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन था उसमें मुझे सफिशिएंटली इनफ मार्क्स मिले थे. जबकि उस क्वेश्चन में क्या था कि बहुत सारे सब पार्ट थे, 7 सब पार्ट्स, उसमें सिर्फ 2 या 3 सब पार्ट थे जिसके स्पेसिफिक थियरी आंसर्स थे बुक के, तो वो तो मैंने एज इट इज़ लिखे थे. लेकिन बाकी सारे जो क्वेश्चन थे दैट वर जनरल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द केस स्टडी, तो उसमें से केस स्टडी में से ही छाट के लिखना था. तो समवेयर आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दैट केस स्टडी एज वेल, इवन आफ्टर राइटिंग फ्रॉम माई ओन, लाइक खुद के हिसाब से लिखने के बाद इवन आई गॉट गुड मार्क्स. सो डोंट मेक अ फस अबाउट केस स्टडीज़. मेक श्योर डैट आपको वो चैप्टर की थियरी अच्छे से याद है, एंड एग्जाम में आपको बस थियरी को केस स्टडी से लिंक करना है. सो दैट वॉज अबाउट केस स्टडी. एंड देन कमिंग टू प्रैक्टिकल चैप्टर्स, तो बेसिकली 3 मेन प्रैक्टिकल चैप्टर्स ही आई बिलीव. दिस डिसीजन मेकिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग. तो PL में मैं बेसिकली प्रैक्टिकल चैप्टर्स पहले उठाता था, देन थियरी चैप्टर्स को एक साथ करता था, मतलब पहले सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चैप्टर्स क्लियर करके. बट यू कैन डू अदरवाइज ऑल्सो. मतलब सम पीपल के ऐसे ओपिनियन होते हैं कि लाइक वो जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी होते हैं ना, उसमें आजकल लास्ट में पॉइंट्स होते हैं रिकमेंड सम स्ट्रैटेजी, या फिर ये करना चाहिए, एनालाइज, आइडेंटिफाई. तो थोड़ी बहुत प्रीवियस चैप्टर्स की थियरी काम आती है, बट एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है. सो इट डजेंट मैटर्स कि आप पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स उठा रहे हैं कि थियरी चैप्टर्स उठा रहे हैं.
Also for practical chapters, I think that unlike IPCC, इस टाइम फाइनल में कॉस्टिंग में ज़्यादा फॉर्मेट्स और ऐसी सब चीज़ें नहीं होती. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन कैलकुलेटर इटसेल्फ बेयरिंग फ्यू टॉपिक्स. सो आई वुड एडवाइस कि सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर में कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए. एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट आप जो भी रेफरेंस बुक, अगर आप रेफरेंस बुक प्रेफर कर रहे हैं तो जो भी रेफरेंस बुक प्रेफर कर रहे हैं उसको आप स्टडी मटेरियल के आंसर से कंपेयर करते रहिए, क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट आंसर्स चेंज करती है, इम्प्रूव करती है. तो आपका ऐसा हो सकता है कि आपका मटेरियल में गलत आंसर दिया हुआ है या फिर पुराना आंसर दिया हुआ है. सो दैट वाज अबाउट माय स्ट्रैटेजी फॉर SCMP. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a awesome day. Also, in the description below, you can find a link of Google Drive which contains my scanned notes or the summaries I made of the subject, so you can refer them. But my personal advice would be make your own notes or summary. Just use my notes as a reference on how to make summary, or obviously you have a better knowledge of how to make summaries that you would understand in future.